আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রিয় বন্ধুরা। ভারতে গত 5ই মার্চ তারিখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রিলিজ হওয়া দ্য কেরালা স্টোরি মুভি সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই জানেন। এই মুভিতে মুসলমানদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আতঙ্কবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বলে দেখানো হয়েছে। আর এ নিয়ে এর আগেও আমি আপনাদের সাথে কয়েকটি ভিডিও শেয়ার করেছি। যদিও সেই মুভিটি ফ্লপ হয়ে গিয়েছে, তবে ভারতবর্ষে কিছু কিছু কট্টরবাদী ধারণা পোষণ করা হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তিরা এখনও সে মুভিটির সাপোর্ট করছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা কথা বলছে। আজকের ভিডিওটি এ বিষয়ে। এ ভিডিওতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্য দ্য কেরালা স্টোরি মুভি সম্পর্কে বলে। এ মুভিতে একটি মুসলিম মেয়েকে দেখানো হয়েছে। সে মুসলিম মেয়ের কিছু হিন্দু বান্ধবী থাকে, আর সে তার হিন্দু বান্ধবীদেরকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে মগজ ধোলাই করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে। আর হিন্দু মেয়েদেরকে সে তার মুসলিম ভাই ও ছেলে বন্ধুদের সাথে পরিচয় করায়। তারপর মুসলিম ছেলেরা তাদেরকে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের ভগবান সম্পর্কে উল্টোপাল্টা কথা বলে। মেয়েদেরকে নিজের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করায়। তারপর সে হিন্দু মেয়েদের সাথে তারা জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করে তাদেরকে নিজের আতঙ্কবাদী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করিয়ে ফেলে। আর এভাবে আমাদের হিন্দু মেয়েরা মুসলমানদের ফাঁদে পড়ে আতঙ্কবাদী হয়ে হাতে অস্ত্র নিয়ে ভারতের সৈনিক, ছোট ছোট বাচ্চা ও মা বোনদেরকে মারার চেষ্টা করে। সেই হিন্দু ব্যক্তিটি এসব কথা বলার পর ভারতবর্ষে যে বিষয়টি নিয়ে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে, আর সেটি হলো লাভ জিহাদ। সেই হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তিটি বলে, একজন মুসলিম ছেলে একটি হিন্দু মেয়ের সাথে বিয়ে করার পর তাকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাকে অন্য একটি মুসলিম রাষ্ট্রে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে তাকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে দেয়, আর বিক্রি হওয়ার পর সে মেয়েদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করানো হয়। এভাবে মুসলিম ছেলেরা হিন্দু মেয়েদেরকে নিজের প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের সাথে বিয়ে করে আর তাদেরকে বিদেশে নিয়ে পাচার করে থাকে। আর এছাড়া বন্ধুরা, সেই হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তিটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরও অনেক কিছু বলে। আমি আপনাদের সাথে তার সে সকল বলা কথাগুলোর ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করব। এছাড়া আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই ধরনের একটি ভিডিও শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। তাই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আপনাদের সাথে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের মুসলমানদেরকে নিয়ে বলা হিংসাত্মক কথাগুলোর ভিডিও ক্লিপটি দেখাতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো নিজেই তার মুখে শুনুন। एक पिक्चर भारत देश में अभी अभी आपने सुनी होगी द केरला। उस पिक्चर में छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। उस पिक्चर में एक छोटी सी कहानी है। हिंदू लड़की होती है और एक मुसलमान लड़की होती है। वो हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर और अपने धर्म में वो उसे कन्वर्ट करना चाहती है। अपने मुसलमान भाइयों से, मित्रों से वो इन्हें मिलाती है और वो बताते हैं कि तुम्हारे भगवान में क्या है। कृष्ण भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों से विवाह किया, ऐसा ऐसा पाठ तुम्हें पढ़ाया जाता है। वो भगवान है जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, जो काली अनांग पर नृत्य कर सकते हैं। वो 16,108 विवाह करें तो उनमें कोई दोष नहीं। और उन हिंदू लड़कियों को बरगलाकर और उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट कराया। उन लड़कियों को ले जाकर उनका शोषण करवाया और बाद में आतंकी संगठन में उन्हें सम्मिलित कर दिया। और वही लड़कियां जो हमारी बहन बेटियां थीं, वही लोग बंदूक लेकर के हमारे भारत के बच्चों को, मां बहन बेटियों को मारने के लिए आतंकवादी बन करके देश की सेना को मारने के लिए तैयार हैं। एक लड़की एक लड़के से विवाह करती है, मुसलमान लड़के से, और वो लड़का ले जाकर हनीमून मनाने के बहाने उसे विदेश ले गया। एक मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम देश ले गया और उस देश में उसे 70 लाख रुपए में बेच दिया। सच्ची घटना बोल रहा हूं, 70 लाख में बेचा। खरीदने वालों ने उसके साथ क्या किया? देह व्यापार में भेज दिया। अब वो वैश्या की तरह देह व्यापार करती है। ऐसी कितनी लड़कियों से प्यार का ये बहाना कर करके प्यार के बहाने ले जाते हैं और विदेशों में जैसी तुम्हारी शकल सूरत होती है वैसे दाम मिल जाते हैं। तुम जरा ज्यादा सुंदर होगी, तुम्हारे ज्यादा पैसा मिलेंगे। तुम जरा सांवली होगी, तुम्हारे कम पैसे मिलेंगे। विदेशों में भारत से जाकर लव जिहाद क्या है? यही तो है, प्यार के बहाने ले जाकर और देह व्यापार में घुसा दिया जाता है बहन बेटियों को। और ये हमारी बहन बेटियां ना जाने कब समझेंगी। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी चमड़ी की वासना है, शरीर का अटैचमेंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारा शोषण करना दुनिया चाहती है।
कौन नहीं चाहता तुम्हें छूना, कौन नहीं चाहता तुम्हें प्राप्त करना। कब समझोगी तुम? ये प्यार का भूत तुम्हें चढ़ जाता है, फिर तुम किसी की नहीं सुनती हो, बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, और जब पश्चाताप करोगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक बार किसी ने आई लव यू कहा तो वो सोचने लगती अच्छा प्यार करता होगा तब तो कहा है, विचार करने लग जाती हैं और फिर धीरे से लिख के भेज देती हैं आई लव यू टू। हम भी करते हैं आज। सुनो, कोई आपको आई लव यू लिख के भेजे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, तो आप ये लिख के भेजा करो कि अपनी माँ को, अपनी बहन को आई लव यू बोलो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम्हारे शरीर से प्यार करता है। বন্ধুরা, আপনারা হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের বলা হিংসাত্মক কথাগুলোর ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে মিডিয়া ও গণমাধ্যমে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে কিভাবে সন্ত্রাস ও আতঙ্কবাদ বলে প্রমাণ করা হচ্ছে তা তিনি আলোচনা করেছেন। আর ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের ধারণা কেমন আর তাদের সে ধারণাটিকে কিভাবে পরিবর্তন করা যায় সে সম্পর্কে বলছেন। এছাড়া তিনি ভারতবর্ষে সবচেয়ে হিংসাত্মক ও ঘৃণিতভাবে ব্যবহৃত হওয়া শব্দ অর্থাৎ লাভ জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছেন। আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করব, আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रहा है, उस तरीके से आज ये 20 आम सवालात गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया के कई ममालिक का सफ़र कर चुका हूँ, USA, कनाडा, UK, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, UAE, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जिधर भी आप जाओ ये 20 शुबहात, ये 20 गलतफहमियां वही है। हो सकता है कि माशरे के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से एक और गलतफहमी उसके जहन में आ सकती है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में गैर मुस्लिम सोचने लगता है कि ये इस्लाम में सूद हराम क्यों है, लेकिन वो बाकी के 20 गलतफहमियां वही हैं। चाहे इंडिया के गैर मुस्लिम से पूछिए, चाहे USA के, UK के, कनाडा के, सिंगापुर के, मलेशिया के, ये गलतफहमियां वही है। अगर हर मुसलमान इन गलतफहमियों का जवाब सही तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में, दिगर मज़ाहिब की किताब की रोशनी में, हिकमत के साथ, रीजन, साइंस एंड लॉजिक के साथ इसे याद कर ले और गैर मुसलमानों तक पहुंचाए, इंशाअल्लाह इस्लाम का नजरिया गैर मुसलमानों में बदल जाएगा। कम से कम उनके जहन, उनके दिल में जो जहर है, कम से कम उससे तो हमें निकालना फर्ज है हमारा। आज सबसे ज्यादा इस्लामिक लफ्ज जो बदनाम है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, वो है लफ्ज जिहाद। जिहाद के बारे में गलतफहमी सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भी है, क्योंकि मीडिया इतना जहर फैला चुका है लफ्ज जिहाद के खिलाफ कि सिर्फ गैर मुसलमानों के दरमियान ही नहीं, मुसलमान भी इसकी सही मानी नहीं जानते। अक्सर गैर मुस्लिम और मुस्लिम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे वो दौलत के लिए हो, चाहे वो फेम के लिए हो, चाहे वो अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, ये लोग समझते हैं कि जिहाद है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे दौलत के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे फेम के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो। जिहाद ये अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से। इसकी बुनियाद है जहादा, मतलब जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। तो जिहाद का मतलब है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल। और इस्लाम के पस मंजर में जिहाद उसे कहते हैं जो इंसान अपने बुरे गलत ख्यालात के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जिहाद कर रहा है। अ पर्सन हु स्ट्राइव्स अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, अपने बुरे ख्वाहिशों के खिलाफ जो जिद्दोजहद करता है उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान
नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जो जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जो जंग में अपने आप को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर एक तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। अक्सर लोग यह समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही जिहाद कर सकते हैं। यह बड़ी गलतफहमी है। कुरान में एक से ज्यादा आयतें हैं जिसमें लिखा है कि गैर मुस्लिम भी जिहाद करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने कहा है इंसानों से कि अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो, और तुम्हारी मां ने तुम्हें पेट में रखा और 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें तकलीफ के साथ जन्म दिया। उसके बाद फौरन अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने को, अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने के लिए जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनका कहना मत मानो, फिर भी उनके साथ अच्छाई से पेश आओ। यहां अल्लाह ताला कह रहे हैं जब गैर मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों के साथ जिहाद करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, शिर्क करने के लिए अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने को कहते हैं, उस वक्त आप उनका कहना मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छे से पेश आओ। यह पैगाम फिर से दोहराया गया है सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कहा है कि सारे इंसानों से अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो, लेकिन अगर आपके वालिदैन जिहाद करते हैं जिद्दोजहद करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका आपको इल्म नहीं है, तो उनकी बात मत मानो। বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটিও দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।